Hello everyone. Good morning, good afternoon, or good evening, depending on whenever you are watching this video. Hi, my name is Sumit, and we are going to do the operation management and strategic management paper together. It's because of the pandemic that we are meeting this way, or we were going to meet face to face around this time of the year. But because of the pandemic, this is the framework that we stick to, and this is how we are going to commence with the lectures. So the paper that I'm going to do is the OMSM paper. The paper is in two parts. There is operation management and there is strategic management. I'm not going to be taking both. I'm only going to be taking operations management. Strategic management will be taken by another professor. Before I begin with the paper, again, I hope you all are indoors. I hope you all are safe. Please stay indoors. Do not go out anywhere. Do not engage. The number of cases are still drastically increasing in Maharashtra and Mumbai specifically. So please stay indoors. Do not go anywhere outside. If there are people from your house that are going outside for no reason, please tell them not to. Because it's getting worse by the day and it is us who has to control it. Having said that, let's come back to the paper. So the paper that I'm going to teach is paper 9 at the inter level, called Operation Management and Strategic Management. Now, like I said, I am not going to do strategic management. I'm going to do the operational management bit of it. Now, people who know me, who have done foundation with me, I majorly teach mathematics and statistics. And because this paper is a combination or an amalgamation of mathematics, statistics, a little bit of physics and analytics and all of that, because of that, I am going to be taking this paper for you. So like I said, my name is Sumit, and for people who know me, know that whenever we do something, I try to develop a knowledge base and try to do something from basics so that it's understood well, because I strongly believe that when something is understood well, studying it becomes easier and then automatically marks will follow. If you study just to get the marks, then it's not fun, because then you're not developing a knowledge base of any kind. You're only and only studying to get marks, which I don't really prefer. Having said that, before I start with the paper, before I start with any topic in the paper, what I'm going to do is I'm going to discuss the question paper of operation management. Why? Because I strongly believe that for you to be able to study a certain paper, or for you to be able to have an idea as to what should be your lookout or what should be your strategy as far as studying the paper is concerned, you need to know what kind of questions are going to be asked in this question paper. And that is exactly why what I'm going to do is I'm going to be doing the question paper with you, or I'm going to be doing the analysis of the question paper, or understanding what is going to be asked and how it is going to be asked. So let's begin with understanding the question paper of operations management. I have randomly picked up one question paper, which is the December 17 question paper. So a little bit of a highlight, the syllabus, your syllabus, which is any professional course for that matter, but we'll be specifically talking about CMA. The syllabus of CMA changes every 4 years. So there was a syllabus in 2008 which got redesigned in 2012, which got redesigned in 2016, which was technically supposed to be redesigned in 2020, but now with the pandemic and all of that, I don't think that is going to be happening anytime soon. So you are going to be studying the 2016 syllabus. So like I said, every year, every 4 years, the syllabus changes, or they redesign the syllabus. They add a few new things, they remove a few things, depending on what is current, what is not current, any new technologies, any new concepts that you need to learn, all of that are added. Anything old which is not used anymore is being removed, and so on. So the last the syllabus was designed was 2016. But what happened in 2016 was, so technically the syllabus was supposed to come out in 2016, but what happened in 2016 was, I think around that time GST was also introduced, and then there was this entire confusion about how will the new syllabus come out with GST, without GST, how can we teach students without GST, and that is why the new syllabus wasn't out in 2016. So what they did is they redesigned it again, they added a few things, and with GST and with all the changes, the syllabus was introduced in 2017. So technically it should have started in 2016, but it didn't, it started in 2017.
So starting from 2017, 18 and 19, it's been 3 years since the syllabus is being introduced. Now every year there are 2 attempts. You all know that there is a June and then there is a December. Now with every June and every December, every year there are 2 attempts. So 2 attempts for 3 years is a total of 6 question papers. So the exam has been held for a total of 6 times up till now, and with these 6 times you have 6 question papers, and which I will be sharing with you, and I will tell you what we are going to do with the 6 question papers, but not now. Right now I only want you to look at 1 question paper that I'm going to share with you. So there are 6 question papers which I'm going to share with you, and then we are going to discuss question papers as well. The pattern in all the question papers remains the same. That is why I'm sharing only 1 question paper with you. So there is a June 17, a December 17, there is a June 18, and then there is a December 18, then there is a June 19, and then there is a December 19. So there have been a total of 6 question papers right from 17 up till 19. I have picked up the December 17 question paper, no hard and fast, just randomly. Now if you notice in the December 17 question paper, it says December 17, and the year, if you notice, says that it is 2016 syllabus, which means it is the question paper is designed keeping the 2016 syllabus in mind. So having said that and having understood that, I would say let's just begin then with whatever that we are going to do, which is analyzing the question paper. So to begin with, questions. So let's start with question number 1. So question number, just hold on for a second. Yeah. So question number 1 in the question set is 1A, that says choose the correct answer. Choose the correct answer, in other words, or like we like to call it, it is also known as MCQ. Now what do you mean by MCQ? MCQ questions are multiple choice questions where a question is given to you and it has multiple choices. You have to select whatever you think is the right option. So if you notice, there is a total of 1 into 10. What does that mean? There are a total of 10 questions and each question carries 1 mark. So 1 into 10 is 10. Let's check how many questions are there. Now this is a stupid question to ask. Why do you want to know how many questions are there? If it says 1 into 10, which is 1 mark each, 10 questions is going to be 10 marks. So it is going to be 10 questions. I agree with you. I know it is stupid, but I still want to take a look at it. So 1A, there is 1, there is 2, there is 3, there is 4, there is 5, there is 6, there is 7, there is 8, there is 9, and there is 10. Is that right? So what do we notice? What we notice is the multiple choice question, also known as the choose the correct answer. There are 10 questions given and you have to answer 10 questions. So let's do one thing. Let's write that down. So I'm going to write this down on my paper. OMSM. To begin with, the first kind of a question, the first question that you are going to have is 1A, which is going to be MCQ. How many are going to have? You are going to have 10 questions into 1 mark each is going to be a total of 10 marks. Done? That is question number 1A. Let's go to the next. It has to be 1B. Let's come to question 1B. Question number 1B, as I keep going down into the question paper, is match the column. It says 1 into 6. So can I say there are going to be 6 matches? 1 mark each. 6 into 1 is 6. Is that right? Yes. Let's check if that is correct. Are there 6 matches? Yes. A, B, C, D, E, F. There are 6 matches in total and it is going to be 1 mark each. So it is going to be 6 marks. So let's go back, which is question 1B. Match the column, which is going to be 6 questions into 1 mark each.
is going to be 6 marks in total. That is question 1A. Question 1B. Let's go to the next question, and that is question 1C. Question 1C is true or false. It says 1 into 6, which means there are going to be 6 questions, that is 1 mark each. Question C, true or false, is going to be 6 questions in total into 1 mark each is going to be 6 marks in total. Again, how many questions are given to you? It's basic here, it's written 6 questions, I agree, but I still want to count. So there is a 1, 2, 3, 4, 5 and a 6. So there are 6 questions. That covers up your question 1, A, B and C. There is there is MCQs, which is 10 questions, 1 mark each, so 10 marks. Match the column, 6 matches, 1 mark each, so 6 marks in total. And true or false, 6 questions, 1 mark each is going to be a total of 6 marks. After doing that, let's move on to the next question. The next question is question 2. But before you start with question 2, there is a broad heading that says answer any 3 questions from the following, 16 into 3. Now why have they written answer any 3? Let me scroll and check it. So 2 has an AB, then there is a 3AB, then there is a 4A and a B, then there is a 5A and a B, then there is a 6, but no, 6 goes into strategic management, so that is not what I have. So can I say up till 5AB is what we have? So how many did we count in total? Where we started counting with 2, so there is 2, 3, 4, 5. 4 questions are given, but how many are they expecting you to answer? 4 questions, but they are expecting you to answer only 3. And every question is 16 marks each. So let me write that down for you. Question 2, now this is combined, so I am not going to write it 2, 3, 4, 5 separately. So I am just going to say question 2, 3, 4, 5. All these 4 questions, but you have to answer any 3. You don't have to answer 4, which means that you have a choice, meaning one of these questions can be skipped. But let me ask you one thing. Was that option given to you in MCQs and match the column? No. There were 10 MCQs for 10 marks. So all MCQs had to be answered. There were 6 matches, all had to be answered. There were 6 true or false, all had to be answered. There were no choices there. But when you come to the descriptive questions, what do you mean by descriptive questions? Well, by descriptive, I mean that here with the MCQ, the match the column and the true or false, nobody cares how you got the answer. Whether it is a theory question or it is a mathematical question or any kind of a question, nobody cares. Whatever you write, where is it coming from? Nobody is asking you for an explanation. But when we come to the descriptive questions, which is 2, 3, 4, 5, it is 3 questions. So 3 questions, every question carries 16 marks. Sorry, 3 questions, yes, every question carries 16 marks. Now if every question carries 16 marks, do you agree that for 16 marks, they will expect an explanation? And what is 16 into 3? 16 into 3 is going to be a total of 16 into 3 is going to be a total of 48 marks. So 16 into 3 is going to be a total of 48 marks. Here they are expecting an explanation for you. Whatever you are going to write should be written in detail, should be explained point to point. Everything has to be written down well. But sir,
3 questions, every question is 16 marks. Yes, every question is 16 marks because every question is bifurcated into 2 questions. And that is, if you notice, question 2 has 2 parts, A and B, where they write that A is 7 marks and what is B? Then the remaining 9 marks is B. Similarly with question 3, A is 7 marks, B is 9. Similarly with question 4, A here itself is 10 marks. So now they've changed this. A is 10 marks and B will be the rest, which is B will be 6 because 10 plus 6 is 16. In question 5, A is 10 marks, then B has to be the remaining 6. So the total is 16 marks. But does that mean 16 will be 8 and 8? Not necessarily. That breakup depends on them. They can ask you a question for 10 and 5. They can ask you a question for, like we saw some time ago, they can ask you a question for 1 for 7 and then the other for 9. They can ask you a question for 5 and 10. They can ask you the bifurcation of that question, doesn't matter, but the total will be 16 marks. So every question which is 2, 3, 4, 5 will all have an A and a B. A, B will be 2 different sets of marks. But if you are answering to A, you have to answer to B. That is not a choice. The choice is where either answer 2 completely, 3 completely, 4 completely and skip 5, or answer the last 3, don't answer 2. But whatever you choose, that has to be completely answered. You can't choose between A's and B's. You can choose between 2, 3, 4 and 5. So let me get rid of the PDF now that we've seen the question paper, and we will be looking at the question paper a lot. We are going to look at that, look at the kind of questions that are asked a lot. So MCQ for 10 marks, match the column for 6 marks, true or false for 6 marks. Descriptive questions, 4 questions, but there is a choice. You have to skip 1. So you can answer a total of 3. 3 questions for 16 marks each is a total of 48 marks. Well, then let's look at what does the total come to. The total will come to 6 plus 6 is 12. 12 plus 10 is 22. 22 plus 48. 48 plus 2 is 50 plus another 20 is 70. So the total works out to be 70 marks. But sir, the question paper is 100 marks. I agree with you. Let's come back to the question paper. If you look at the heading of the question paper is a total of 100 marks. But then sir, how come this is 70? I'll tell you. Because there's a second section also. And what is the second section? The second section is SM. This is from where SM begins. I'm not going to discuss that question paper with you because I don't understand SM. The SM faculty will discuss it with you. So this is SM. So if OM is going to be asked for 70 marks, then SM is going to be asked for 30 marks, which means your OMSM bifurcates into 2 parts, and that is OM and SM. The OM paper is 70 marks, while the SM paper is 30 marks. The total adds up to a total of 100 marks. How does the 70 mark bifurcation into OM go? The 70 mark bifurcation into OM goes MCQ. So there are 2 questions. Question 1, which is objective, and question 2, 3, 4, 5, which is descriptive. Question 1 has 3 parts, A, B and C to it. A is MCQ for 10 marks, no options. Now what do I mean by no options? Don't confuse yourself. When I say no options, what I mean is you don't have a choice to answer how many questions. 10 questions given, all 10 have to be answered. Every question is compulsory. Same with match the column, 6 matches are given, all 6 have to be done. Same with true or false, 6 true or false are given, all 6 have to be answered.
But when you come to descriptive questions, there are 4 questions, but out of the 4, only 3 have to be answered. Each question carries 16 marks. 16 into 3 is a total of 48 marks. Everything adds up to a total of 70. And this 70 is going to be my responsibility. We are going to learn for these 70 marks, and at the same time, one level at a time, understand how the question paper is put up, what kind of questions are asked, where are they asked from, and how does one need to prepare. So this is your paper bifurcation. If you can, on the first page, please make sure you write down this question paper breakup so that you also have this with you. I will be sharing question papers with you very soon. As soon as I am nearing the end of the chapter, I will share it with you so that after every chapter, we will discuss the questions asked from that chapter. And when I'm doing that, I'm going to elaborate the question paper discussion a little more and then tell you about the questions asked. So, having said that, this is your question paper breakup for OMSM. Please make sure you write this down, and after this, we will start off with our first topic. Now that you've understood what the marking scheme of the question papers or your paper is going to be, I want to now move into the subject. I'm not going to touch upon any topic right now, but I'm just going to talk for a really long time. So what I would suggest is grab some popcorn, sit, get cozy, because I'm going to talk. I'm going to talk for a really long time, and I want you to listen to whatever I am saying. Let's go back to school. What do I mean by let's go back to school? Let's go back to school where we were still studying numbers. When we were still studying what numbers mean, what they are, how they are applied, where they are used, and all of that. Back in school, when we did numbers or any calculations where numbers were concerned, we did mathematics. Later, mathematics became algebra and geometry in the 9th and the 10th standard, but that was still mathematics. Algebra is where you were given real life problems where you had to find something. So you changed the real life problem into a mathematical equation. You solved it, and that was algebra. Geometry was geometrical figures were involved. So there were squares, there were rectangles, there were segments, there were chords, there were trapeziums, there were rectangular parallelepipeds. All these things were involved. And then we passed the 10th standard, hopefully, and we came to the 11th and the 12th, where now suddenly mathematics is 2 different streams. There is mathematics and there is statistics. So my question to you is, why suddenly a need of a new paper altogether? Ab maths ke andar hi to sab kar rahe the. So if this was on a one-to-one level, on a personal level, I would ask you, what is different in mathematics and statistics? What is it that sets mathematics apart or sets statistics apart from each other? What is it that defines कि ये mathematics है और ये statistics है? What do you think? So I'm going to give you like 30 seconds to think about it, because like I said, you're not sitting in front of each other, hence asking questions becomes a little difficult. So I'm going to let you bite on it for some time and think about why suddenly a new paper, why suddenly statistics? So because of classroom teaching, these are the standard answers that I get. People say graphs draw karte hain statistics mein. I agree with you. I agree कि statistics में graph draw करते हैं, पर graph draw करना है इसलिए एक नया पेपर बना दिया, ऐसे नहीं होता ना. इसमें graph आता है क्या? हाँ, तो इसको statistics में डाल दो. नहीं चलता ऐसा. Just because you are drawing a graph for something doesn't mean you put it into a different section. Then some people say, sir, इसमें averages होते हैं, इसमें data होता है जिसको हम study करते हैं. I agree. पर eventually उस data पे क्या करते हो? Averages निकालते हो, स्टैंडर्ड डिविएशंस निकालते हो, आप मीन्स निकालते हो, आप क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स, डेसाइल्स, कोरिलेशन, रिग्रेशन वगैरह वगैरह निकालते हो. व्हाटएवर यू डू, आई अग्री विथ यू, बट इजंट इट इवेंचुअली अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन दैट यू आर डूइंग?
why the sudden need of an entirely new subject, or why the sudden need of creating an entirely new paper which is called statistics, where everything that you do in statistics is eventually calculations and is eventually mathematics? There is a reason behind it. And what is the reason? Let's take an example. 4 friends go out for lunch, dinner, to eat. Okay, post they met for something and you went out to eat. I know now of late this is going to sound very difficult to do, I agree with you, but yeah, let's just assume that there are a bunch of friends that meet and go out to eat. Now these 4 friends that have gone out to eat, they go to a restaurant and they eat. अब कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है, कोई पाव भाजी खाएगा, कोई बोलेगा नहीं मुझे सिर्फ जूसी चाहिए, somebody might eat a sandwich, कोई एक आध सैंडविच खा के चाय पी लेगा. Everybody eats in a different way depending on, कोई बोलता है कि मैंने heavy lunch किया था तो मैं भी कुछ खाने नहीं वाला हूँ, कोई बोलता है मैंने लंच ही स्किप मारा क्योंकि अपन को यहाँ आना था तो मैं घर से जल्दी निकला. तो depending on whatever whoever says, people eat in different proportions. कोई ज़्यादा खाएगा, कोई कम खाएगा. तो अगर कोई ज्यादा खाता है और कोई कम खाता है, बिल आ जाता है इवेंचुअली एंड द बिल कम्स आउट टू बी 400 रुपीज. अब कितने दोस्त थे? 4. बिल कितना आया? 400 रुपया. व्हाट आर यू गोइंग टू डू? सिंपल, 400 डिवाइडेड बाय 4. व्हाट इज 400 डिवाइडेड बाय 4? 100. तो 4 लोग, विच इज लेट्स अज्यूम ABCD, पे 100, 100, 100, 100. बेसिक कॉमन सेंस. किया क्या आपने एक एवरेज ले लिया, एंड वी नो व्हाट एवरेजेस आर. एवरेज इज दैट वैल्यू दैट कैन बी अप्लाइड टू एनीवन. मतलब क्या? दिस 400 कंप्राइजेस ऑफ डिफरेंट वैल्यूज दैट पीपल हैव ईटन. 100% कंपल्सरी नहीं है कि बंदा 100 रुपए के लिए खाया होगा, मे बी 85 रुपए के लिए खाया है, तो ऊपर का 50 इसने 150 के लिए खाया होगा मे बी. टोटल सबका मिला के 400 होता है, और फिर वो 400 आपने सब में डिवाइड कर दिया, बिकम्स 100, 100, 100 पर पर्सन. फाइन, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. बट कैन आई से दैट एवरीबडी इज ईटन फॉर एन एग्जैक्ट 100? नो. देन व्हाट डू वी से? वी से 100 पर पर्सन होता है, बट कंपल्सरी नहीं कि सबने 100 का खाया हो. किसी ने कम, किसी ने ज्यादा खाया होगा, और कौन बैठ के कट करेगा? तो 100 पर पर्सन. लेट्स कम टू अनदर सिचुएशन. अब इस सिचुएशन में क्या होता है? टोटल बिल 400 ही हुआ, पर यहां पे एक दोस्त उठ के क्या बोला कि देख मैंने लंच नहीं किया था ना, तो मैंने पाव भाजी खाया और मैंने कोल्ड ड्रिंक पिया. बाकी लोगों ने तो सिर्फ किसी ने सैंडविच खाया, किसी ने चाय पिया, ऐसे हुआ है. तो इट इज अनफेयर कि मेरी वजह से सबको ज्यादा पैसा देना पड़े. एक बंदा तो बैठ के सिर्फ चाय पिया था, तो अगर सिर्फ बैठ के चाय पिया था तो उसको क्यों बोल रहे हो 100 रुपए देने के लिए? चाय तो 20 रुपए की थी. तो द प्रॉब्लम विद दिस नाउ इज दैट दिस 100, 100, 100 इज ओके, बट नाउ दिस गाय इज सेइंग कि ऐसे मत करो स्प्लिट बिल. क्या करो? जिसने जितना खाया उसको उतना देना पड़ेगा. फाइन. तो अब क्या हुआ? अब हम बिल स्टडी करना चालू कर दिया. ए को पूछा तूने क्या खाया? उसने बोला मैंने सिर्फ एक सैंडविच खाया था. फिर तेरा 50 है, तू 50 ही दे, ज्यादा मत देना. बी मैं था, मैंने बोला देख मैंने पाव भाजी खाया और मैंने कोल्ड ड्रिंक पिया है, तो पाव भाजी प्लस कोल्ड ड्रिंक, मेरा पाव भाजी का 150 और कोल्ड ड्रिंक का 50, तो मेरा ही होता है 200 रुपया. नंबर 3 क्या बोला? नंबर 3 बोला कि दोस्त मैंने सिर्फ चाय पिया है, मेरा सिर्फ 20 ही रुपया होता है. तो ये हुआ 50 और ये 20 इज अ टोटल ऑफ 70. 70 प्लस 200 इज 270, 270. अब बचा कितना? बचा और 130 रुपया. तो ये बंदा बोलेगा बचा हुआ 130 मैंने खाया था, मैंने एक सैंडविच खाया, मैंने कोल्ड ड्रिंक पिया और मैंने और कुछ मीठा भी खाया था. These are 2 different ways of splitting the bill. Here, can I say that B must have eaten for 100 rupees? No. तो पता अपन क्या बोलते हैं? अपन बोलते हैं इस केस में that the bill is
अप्रोक्सीमेटली 100 per person। पर यहां पे मैं बोलूंगा क्या इस बंदे ने अप्रोक्सीमेटली 200 का खाया? नहीं, क्लियर ब्रेकअप है। 150 का पाव भाजी, 50 का कोल्ड ड्रिंक, 150 प्लस 50 इज अ टोटल ऑफ 200। देर इज नो अप्रोक्सीमेट हियर, ये एग्जैक्ट है। एंड दीज आर टू मैथमेटिकल साइंसेस। दिस इज approximate science while this is exact science। मतलब क्या? मतलब whenever you split the bill approximately it will come under approximate science। ये exact नहीं है, approximate है। whenever you split the bill this way this comes under exact science। तो सर फिर ये करते क्यों हैं? एग्जाम्पल देता हूं, एसएल वर्ल्ड जाना है समझ लो। तो अब आप गए नहीं हो, पहली बार जा रहे हो, तो अब खर्चे का पता नहीं है। तो आपने क्या किया, एक दोस्त को बुलाया और बोला कि तू 3-4 बार जा चुका है ना, तो बता फिर कितना खर्चा होता है। तो बोलना चालू किया, पहली बार गया था ना मैं, तो मेरे से 700 रुपये खर्चा होता। फिर मैं दूसरी बार गया ना, तब हम लोग ने ना एक्स्ट्रा की चीजें भी खरीदी थी, तो मेरा 1500 रुपये गया। फिर हम लोग तीसरी बार गए थे ना, तब है ना मेरा दोस्त ने पैसा भरा, तो मेरा सिर्फ 400 ही गया। फिर मैं चौथी बार बोली नहीं रुक जा, एक अप्रोक्सीमेट फिगर दे देना दोस्त, किसको चाहिए इतना वैल्यू? तो बोलेगा अप्रोक्सीमेटली 1000 रुपये लेके चला जा, हो जाना चाहिए। एंड दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। आई डोंट वांट यू टू टेल मी ईच एंड एवरी वैल्यू, एक अप्रोक्सीमेट फिगर बता दे। तो जहां अप्रोक्सीमेट्स की जरूरत होती है वहां अपन एवरेज लेके बता देते हैं, पर जहां एग्जैक्ट की जरूरत होती है वहां पे ब्रेक डाउन करना पड़ता है। And that is the basic difference between mathematics and statistics. This way of splitting the bill is a statistical way of splitting the bill, while this is the mathematical way of splitting the bill. Here there is an approximate value, here there is an exact value. And that is why statistics is approximate science while mathematics is exact science। तो अगर आपने एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन जो भी है किया, इवेंचुअली जो आंसर आता है वो अगर एग्जैक्ट है तो इट्स अ मैथमेटिकल साइंस, वो अगर अप्रोक्सीमेट है तो इट इज अ स्टैटिस्टिकल साइंस। एग्जाम्पल, ये बंदा जब बोलता है कि अगर एसएल वर्ल्ड जाना है तो 1000 रुपये लेके चल, आप श्योर हो 1000 रुपये होने वाला है? नहीं, अप्रोक्सीमेटली 1000 रुपये बोला ना उसने। आप 1000 रुपये लेके जाओगे, दुनिया भर का शॉपिंग करोगे और दबा के खाओगे, तो 1000 रुपये में होने वाला है क्या? तो आके इसका गला पकड़ोगे, बोलोगे तूने तो 1000 बोला था। अरे उसने अप्रोक्सीमेटली बोला था। नॉर्मल आदमी का 1000 रुपया लगता है ऑन एन अप्रोक्सीमेट बेसिस, होते कुछ खर्चा करने वाले, मैं अप्रोक्सीमेट की बात कर रहा हूं। यह एग्जैक्ट है। इसका एग्जाम्पल, आप टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो या आपका कोई टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है, या दुकानदार, आपने सामान लिया, 25 चीजें ली, उसने लिख दिया और बोलेगा अप्रोक्सीमेटली ना 2500 रुपये दे दो। अरे अप्रोक्सीमेटली 2500 क्या होता है? ऊपर नीचे होगा क्या? नहीं, गलत है, एग्जैक्टली 2500 देना पड़ेगा ना। देन दैट इज एग्जैक्ट साइंस। जहां कहीं भी द फाइनल रिजल्ट इज एन एग्जैक्ट वैल्यू will come under mathematics, and wherever the final result is a approximate value comes under statistics. We also call these systems probabilistic systems and deterministic systems. Now I want to stop here and tell you something about me, and that is known. I'm not going to discuss my personal life and my life journey here. So the thing about me is I love giving examples, and because I think that the more examples you give, the more you can relate things, the easier it becomes to understand, and that is why I end up talking a lot. So with me you will have to bear with a lot of examples and a lot of talking. Coming back, probabilistic system and a deterministic system, ये हर एक एनवायरमेंट में होता है। आज आप जो भी कर रहे हो ना, ये दो सिस्टम पे काम करता है, एक प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम होता है और एक डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम होता है। एग्जाम्पल देता हूं, जोमैटो पता है सबको, वी आर यूजिंग इट राइट नाउ, आई थिंक स्विगी, जोमैटो वगैरह वगैरह अपन यूज करते हैं। तो अब दोस्त बोले कि बाहर खाने जाना है,
तो कैसा रेस्टोरेंट चाहिए? अब जोमेटो में भी अलग अलग टाइप के रेस्टोरेंट आते हैं ना। ऐसे होते हैं जहाँ पे बाहर सीटिंग होता ही नहीं, खड़े खड़े खाना पड़ता है, सिर्फ पार्सल लेके जाओ। ऐसा होता है जो खा सकते हैं पर और इतना फैंसी नहीं होता। पर ऐसे होता है जो एकदम फैंसी होता है, फाइन डाइन टाइप्स, जो अपन साल में एक आध बार बर्थडे पे या किसी की एनिवर्सरी पे, मॉम डैड की वेडिंग एनिवर्सरी या ऐसे टाइम पे अपन ऐसे रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं। तो आपका दोस्त बोला कि एक ऐसा रेस्टोरेंट देख जो ज्यादा महंगा नहीं है, तो फाइन डाइन मत देख, look at something like a normal restaurant. So you start looking at a normal restaurant, you find one restaurant. आपने सबको पूछा कौन क्या cuisine खाएगा. So some people said मेरे को Chinese खाना है, somebody said Italian खाना है. तो finally you found one restaurant that covers all. ऐसा रेस्टोरेंट है जहां पे सब मिल जाता है. तो किसी को पानी पूरी खाना है तो तू खा ले बाबा, किसी को चाइनीज खाना है तो तू खा ले, जिसको जो खाना है खा सकता है. You looked at the price and the value said approximately 250 या approximately 500 for 2 people. करेक्ट? मतलब क्या? अगर आप होटल गए 2 जन, बोला क्या था? approximately 500 for 2 people. अगर आप खाने के लिए गए, दबा के खाया, जो मतलब ऐसा खाया ना जैसे 5 दिन से उपवास है, दबा के खाया और फिर बिल आ गया 2000 रुपया, तो क्या बोलिए? अरे नहीं, आपने तो ऐप पे बोला था 500 रुपया होना चाहिए, चलेगा क्या? इसलिए उन्होंने लिखा है दैट इट इज 500 अप्रोक्सीमेटली फॉर 2 पीपल. दैट रिजल्ट कम्स अंडर एन अप्रोक्सीमेट रिजल्ट. लेट्स गिव इट अनदर एग्जाम्पल. तो ये था प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम. डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम पे आ जाते हैं. सेम, आपने बुक माई शो वाला ऐप यूज किया होगा. अब बुक माई शो पे अपन पिक्चर की टिकट बुक करते हैं, बराबर. अब ऐसा नहीं है ना कि लंबे हो तो ज्यादा टिकट लगेगा, छोटे हो तो कम टिकट लगेगा, पूरी पिक्चर देखोगे तो अलग रेट, आधी पिक्चर देखोगे तो अलग रेट. ऐसा कुछ नहीं होता है बुक माई शो पे. अगर वो बोलता है 250 रुपया पर पर्सन, तो कोई भी बुक करे, हर एक जन को 250 रुपया ही लगने वाला है. एंड दैट इज एन एग्जैक्ट साइंस सिस्टम और दैट इज अ डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम. इस सिस्टम में किया हुआ कैलकुलेशन एग्जैक्ट वैल्यू आता है, कभी अप्रोक्सीमेट नहीं आता. इस सिस्टम में किया हुआ वैल्यू अप्रोक्सीमेट आता है. अब आ जाता है आपके लेवल पे. एग्जांपल देता हूं मैं आपको. आपकी कंपनी है, आप आपकी कंपनी के अकाउंट्स फाइनल कर रहे हो. तो मैंने आपको क्या पूछा? मेरे को बता 2 फरवरी 2020 को शाम तक क्या क्या इन आउट हुआ. तो 2 फरवरी 2020 तक जो कैलकुलेशन हुआ उस हिसाब से मेरे अकाउंट में क्या पैसा होना चाहिए. तो आपने कैलकुलेशन चालू किया, ओपनिंग बैलेंस, फिर नॉट अ साइंस स्टूडेंट, नॉट अ कॉमर्स स्टूडेंट, सॉरी, आई हैव ऑलवेज बीन अ साइंस स्टूडेंट, तो मेरे को नहीं समझता ये अकाउंट्स वगैरह. अकाउंट्स में एक ही चीज समझता है, एक क्रेडिट होता है, एक डेबिट. आया हुआ पैसा क्रेडिट, गया हुआ पैसा डेबिट, बस. ये छोड़ के मेरे को कुछ नहीं समझता. सो एनीवे, सो आई एम स्टिल ट्राइंग टू गिव एन एग्जांपल, सो यू शुड अप्रिशिएट माय एफर्ट्स. अगर आपको मैंने अकाउंट बनाने बोला, या फिर आज तक का मैंने बोला देख शुरुआत में 10,000 रुपए थे अपने अकाउंट में, ये इन है, ये आउट है, ये कैश आया था, इसमें से इतना कैश खर्चा हुआ, तो मैंने ये कैश डिपॉजिट किया था, फिर इतने लोगों ने चेक से पैसा दिया था, ये सब डेटा है मेरे पास. अब तू बता मेरे अकाउंट में आज कितना पैसा होना चाहिए. तो आपने कैलकुलेशन कर दिया और बोल दिया पता नहीं 1 लाख 1.25 लाख रुपए होना चाहिए. बोलोगे क्या? अकाउंटेंट तो उसके कान के नीचे खींच के देगा, बोलेगा आप 1.25 लाख 1.25 लाख क्या होता है, एग्जैक्टली पता क्या होना चाहिए. और आप जो बोलते हैं वो टैली भी होना चाहिए. क्यों? क्योंकि अकाउंट्स इज एन एग्जैक्ट साइंस ना, डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम है. इसमें किया हुआ कैलकुलेशन एग्जैक्टली वही वैल्यू आता है. बट ऑन दी अदर हैंड, अगर मैंने बोला कि आप मेरे कंपनी के प्रोडक्ट मैनेजर हो और मैंने बोला कि देख अब तक मैंने इतना इतना प्रोडक्ट्स बेचा है, मतलब 2010 में इतने बेचे, 11 में इतने, 12 में इतने, 13 में इतने, 14 में इतने, 15, 16, 17, 18, 19 तक इतने बेचे. अब 2020 में कितने बिकेंगे मेरे को जरा बता. तो आप कैलकुलेट करोगे और बोलोगे 2020 में पता नहीं अप्रोक्सीमेटली 10,000 यूनिट बिकना चाहिए. वो बोलेगा अरे ऐसे कैसे, एग्जैक्टली बता कितना बिकेगा. नहीं बता सकता, क्योंकि वो सिस्टम अलग है. आगे क्या होने वाला है वो मेरे हाथ में नहीं है, कुछ भी हो सकता है. आपका कंपेटिटर कोई और प्रोडक्ट लॉन्च कर दे तो आपका प्रोडक्ट ना खरीदे लोग, आपका प्रोडक्ट खराब हो जाए, मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो जाए, विच वी हैव सीन ओवर द इयर्स अ लॉट ऑफ टाइम्स. व्हाट हैपेंस इज, अपन बोलते थे ये 2 साल पहले जो इक्लेयर बनता था ना, आज वैसा इक्लेयर नहीं बनता. या 10 साल पहले जैसा मेलोडी बनता था ना, आज वैसा मेलोडी नहीं बनता. तो मैं मेलोडी नहीं खाता.
सो ओवर द इयर्स प्रोडक्ट भी खराब हो सकता है। तो अलग अलग रीजंस की वजह से मैं बोल रहा हूं 10,000 यूनिट बिक सकता है, कंपल्सरी नहीं है कि 10,000 बिकेगा, थोड़ा ऊपर नीचे होगा। एंड दैट कम्स अंडर अ प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम, and that is the basic difference between statistics and mathematics. So as a whole, or the bottom line of this, what I wanted to say is every mathematical, every calculation based system gives you a result. Depending on if the result is an exact value or an approximate value, we say that the system is either a mathematical system or a statistical system. तो अब समझा कि अपन स्टैटिस्टिक्स एज अ डिफरेंट पेपर क्यों स्टडी करते हैं। आपने फाउंडेशन करके आए होगे तो आप एवरेजेस लेते हो। एवरेज इज नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू, इट्स एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब मैं जब आपको बोलता हूं कि मेरे क्लास के वजन का एवरेज ले ले, तो आप सबका वजन ले लेते हो और फिर उसका एवरेज ले लेते हो, तो एवरेज आता है 60 किलो। तो आप क्या बोलोगे, किसी भी बच्चे को उठा 60 किलो वजन आएगा? ऐसा नहीं होता ना, अप्रोक्सीमेटली 60 किलो आएगा, थोड़ा 60 के ऊपर नीचे हो सकता है। तो फिर क्यों किया ना, अगर एग्जैक्ट वैल्यू मिल ही नहीं रहा था? अरे क्योंकि मेरे को स्टडी करना था। आई वॉन्टेड टू नो कि इस उम्र के बच्चे का एवरेज वेट क्या होना चाहिए, मेरे को बेंच बनाना था इस उम्र के बच्चे के लिए। तो मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या साइज का बेंच बनाऊं। शुड आई should I make a bench which is very strong? Should I make a bench which is not very strong? तो मैं वजन समझने की कोशिश कर रहा था। 60 किलो का एक बच्चा, एक बेंच पे 3 बच्चे बैठेंगे तो 6 3 18, ऐसा बेंच बनना चाहिए जो 180 किलो ले सके। नहीं तो बना दो लोखंड का बेंच जो 1000 किलो भी ले सकता है, क्या फायदा है उसका, फालतू में खर्चा कर रहे हो। And that is where I use averages to understand. Well, on the other hand, when I'm doing accounts, what I have a value is an exact value. That value does not change, and that is why that comes under an exact system. And that is why we study statistics separately. And in this paper of operations management, we are going to do exact systems, but on a large basis we are going to do a lot of statistical or approximate science or probabilistic systems. Now that you've understood the difference between mathematics and statistics, तो statistics सिर्फ ऐसे नहीं कि ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो तो statistics में आता है, ऐसे नहीं। Any system that gives you an approximate value, statistics में आता है। Any system that gives you an exact value, mathematics में आता है। Once you've understood the difference between mathematics and statistics, let's now elaborate a little more in statistics. तो mathematics तो सबको समझता है, आता कहाँ से, अभी बनिए से कुछ चीजें लोगे तो वो बिल बनाएगा, बिल बनाने के बाद बोलेगा इस पे 10% मैं टैक्स लगाता हूँ और 15% सर्विस चार्ज लगाता हूँ, कैलकुलेट करके दे देगा, तो मैथमेटिक्स हो। तो स्टैटिस्टिक्स, आप जिस चीज की बात कर रहे हो, यू आर सेइंग कि अप्रोक्सीमेट्स की जरूरत पड़ती है। ये जरूरत पड़ी क्यों, या फिर स्टैटिस्टिक्स का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ? वेल, स्टैटिस्टिक्स ओरिजिनेटेड बैक इन द डे, जब राजा महाराजाओं के टाइम पे लोगों को एक दो राजाओं को कंपेयर करने की जरूरत पड़ती थी कि इसके पास क्या है। तो एक राजा था जिसके पास 10,000 की सेना, 50,000 की पॉपुलेशन का कंट्रोल करता था, वो 3 नदियां जाती थी उसके किंगडम से, 200 हेक्टर चावल उगता है, एंड सो ऑन, और 50 किलो सोना या 100 किलो सोना उसके पास। What are you doing? You are trying to get a record, or you are trying to get data about something. So statistics basically evolved when there was a need to study something. कुछ चीज अगर आपको एनालाइज करनी है या कुछ चीज आपको स्टडी करनी है तो स्टैटिस्टिक्स का ओरिजिनेशन हुआ। एग्जाम्पल, आपको एसएल वर्ल्ड जाना था तो आपने क्या किया, 10 लोग जो एसएल वर्ल्ड गए, लाइक माई एग्जाम्पल, आई हैव अ फ्रेंड who was supposed to get married in August. I don't know what is going to happen with that, and the wedding was in Chennai. So we decided to go to finish the wedding. It was on a Saturday or a Sunday, and then take a trip to Pondicherry, chill in Pondicherry for a couple of days, for 3 to 4 days, and then come back to Chennai, fly back to Bombay. That was our plan. But अब हुआ क्या, पौंडीचेरी हम जो 4 दोस्त जाना चाहते थे उसमें से कोई गया नहीं था पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1, पौंडीचेरी देखने के लिए टाइम कितना लगता है? क्योंकि कुछ सिटीज ऐसे होती हैं जो चालू होती ही खत्म हो जाती है, तो ऐसा ना हो कि हम 1 हफ्ते की छुट्टी के लिए जाए और 2 दिन में पौंडीचेरी देख के खत्म, तो बाकी का 5 दिन क्या करने वाले, अचार तो नहीं डाल सकते वहां पे। सो व्हाट डू वी डू इज 2 थिंग्स। नंबर 1, पौंडीचेरी जाने के लिए देखने के लिए कितना टाइम लगता है। नंबर 2,
खर्चा क्या होगा पौंडीचेरी में, अप्रोक्सीमेट एक खर्चा, तो फिर पता चले कि बाबा ट्रिप में कितना पैसा जाएगा. सो व्हाट वी स्टार्टेड डूइंग इज वी रिस्पेक्टिवली स्टार्टेड कॉलिंग फ्रेंड्स जो हमको पता है पौंडीचेरी गए थे. So we started off with calling people. I called 3 of my friends, another friend called another 3 of their friends, and so on. Everybody started telling us कि what is there to see. वो कितने दिन के लिए गए थे पर उन्होंने गलती कर दी. तो कोई फ्रेंड्स बोले यार मैं 2 ही दिन के लिए गया था पर गलती कर दी, और 1-2 दिन से एक्सटेंड करता ना तो अच्छे से देख पाता. एक फ्रेंड बोला कि अरे 1 हफ्ता गया था मैं, बोर हो गया, कुछ करने के लिए है ही नहीं. एक फ्रेंच टाउन देखा, ऑरोविल देखा, 1-2 बीच घूमा, बस खत्म, तो है नहीं कुछ, 2-3 दिन में देख के हो जाएगा. फिर थोड़े दोस्त लोग बोले कुछ नहीं रे, महंगा गोवा है तो गोवा ही चला जा. अरे पर गोवा जाते हैं हर साल, पौंडीचेरी गए नहीं है. सो वी वांटेड टू गो टू पौंडीचेरी. सो इवेंचुअली वी रियलाइज्ड दैट इन 4 days वी विल बी एबल टू फिनिश ऑफ सीइंग पौंडीचेरी. अब ये कहां से आया? स्टडी. क्या स्टडी किया? मैंने 10 लोग का एक्सपीरियंस लिया एंड डिपेंडिंग ऑन दैट एक्सपीरियंस आई बेस्ड माई ओपिनियन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज खर्चा. अब खर्चा, 1-2 दोस्त हैं, जैसे सबके लाइफ में अमीर दोस्त होते हैं, मेरे भी लाइफ में है, तो 1-2 अमीर दोस्त हैं. अरे स्टे का क्या है? अरे स्टे कैसे है पता है, तू अच्छी जगह पे रहेगा ना तो एक 10,000 रुपया पर डे में हो जाएगा. लाइक एक्सक्यूज मी, 10,000 रुपया पर डे, 10,000 रुपये इज माई एंटायर ट्रिप बजट, और तू 10,000 रुपये पर डे में सिर्फ एक रात रहने की बात कर रहा है. आई एम सॉरी, पर आप फिर भी ले लेते हो डेटा. तो ये भाई ने खर्चा किया था 50,000 रुपया इन 4 days. Then you talk to another friend. He's like, no. If you all are going to share, तो आप एक 2 bedroom का फ्लैट ले लो. You have 2 bedrooms, Airbnb कर लो, पूरा फ्लैट एक दिन में 10,000 के लिए मिल जाएगा. तो that is good. 2,500 रुपया पर डे में स्टे हो जाता है. Then another friend said, एकदम सस्ता रहने का है ना तो डॉर्मिटरीज है. डॉर्मिटरी में ना एक शेड बड़ा सा रूम होता है, बहुत सारी डॉर्मिटरीज होती हैं. You around 10-15 people are sharing that room. There are a lot of toilet bathrooms attached and there's a huge hall room. बाहर एक sit out है, कैफे है, and they will charge you 500 rupees per person. अरे तो ये भी अच्छा है. तो मैंने क्या किया, सबका खर्चा ले लिया पर डे और फिर उसको एवरेज कर लिया. और फिर मैंने डिसाइड किया कि ऑन एन एवरेज ना अपन को ज्यादा से ज्यादा पर डे 1,500 रुपया लगना चाहिए. तो 1,500 रुपया पर डे इंटू 4 दिन रहने का खर्चा is going to be 6,000 रुपया is the total expense. What did I do? I wanted to study or analyze what is the expense of living in Pondicherry per day. तो मैंने क्या किया, डेटा कलेक्ट किया, and that is where statistics comes in. Statistics came out of the need to study a certain object. अब वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है. इन माई केस इट वॉज नंबर ऑफ डेज दैट वी वॉन्ट टू लिव देयर. इट कुड बी द एक्सपेंस दैट यू आर गोइंग टू मेक. इट कुड बी एनीथिंग. इट कुड बी द एक्सपेंस दैट यू आर गोइंग टू incur if you go to SL World. It could be anything that you want to study. And because of the need of study came in statistics. So what is statistics? Statistics is a study. किस चीज का स्टडी है भाई? क्या स्टडी कर रहे हो? आपको जो चाहिए वो स्टडी कर लो. मतलब आपको खर्चा स्टडी करना था तो आप सबका खर्चा लिख लो, एवरेज ले लो, आप स्टडी का खर्चा कर रहे हो. आप नंबर ऑफ डेज का स्टडी कर रहे हो तो फिर सबको पूछ लो ना तेरा कितना, तेरा क्या सजेशन है, तेरा क्या सजेशन है. तो कोई 7 दिन बोला, कोई 3 दिन बोला, कोई 5 दिन बोला, एवरेज ले लिया. ऑन एन एवरेज 4-4.5 दिन हुआ तो मैंने अज्यूम कर लिया कि 4 दिन में हो जाना चाहिए. इट कुड बी एनीथिंग, एनीथिंग. इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट बारिश कितना होने वाला है, तो आपने क्या किया, 30 दिन बारिश का रीडिंग लिख लिया कि फर्स्ट डे 100 सेंटीमीटर का बारिश हुआ, सेकेंड डे 10 सेंटीमीटर, नेक्स्ट डे 150 सेंटीमीटर, नेक्स्ट डे 200 सेंटीमीटर, नेक्स्ट डे बारिश हुआ इन 0 सेंटीमीटर, और फिर लिख लिया और फिर एक एवरेज ले लिया. सो व्हाट आर यू स्टडिंग? यू आर स्टडिंग द एवरेज रेनफॉल पर डे. तो स्टैटिस्टिक्स कम्स आउट ऑफ अ नीड ऑफ स्टडी. बट व्हाट डू यू स्टडी? कुछ भी स्टडी कर लो. सो व्हाट एवर यू स्टडी becomes your population. अब फटाक से when you say population, लोगों को क्या लगता है कि population मतलब people. Agreed, correct, which is also true. Population मतलब लोग. पर ये कब? ये पुराने जमाने में. अब क्या होने लगा, अपनी जो स्टडी है वो सिर्फ लोगों को लिमिटेड नहीं रही.
मतलब पहले राजा महाराजा लोगों को स्टडी करते थे, फिर लोगों का वेट स्टडी होता था, हाइट स्टडी होती थी, लोगों की सैलरी स्टडी होती थी। पर बाद में क्या होने लगा, मैं कुछ भी स्टडी करने लगा, मेरे मन में जो आया वो, मतलब मेरी सोसाइटी में कितने पेड़ है, पेड़ों की हाइट क्या है, तो ऑन एन एवरेज क्या हाइट का पेड़ है मेरी सोसाइटी में, मैं ये स्टडी करने लगा। तो मेरा स्टडी हो गया, या मेरा पॉपुलेशन हो गया द ट्रीज इन माई सोसाइटी। मैं ना गाड़ियों का एवरेज स्टडी करने लगा, मेरी सोसाइटी की गाड़ी क्या क्या गाड़ियां हैं और क्या क्या माइलेज देती हैं। तो मैंने गाड़ी का नाम, ओनर का नाम और माइलेज लिख दिया, तो मेरा पॉपुलेशन हुआ द कार्स इन माई सोसाइटी। देन आई डिसाइडेड टू स्टडी द कॉस्ट ऑफ अ कार इन माई सोसाइटी, मतलब क्या रेंज में गाड़ियां हैं, मतलब आर द कार्स इन माई सोसाइटी इन द रेंज ऑफ 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, और आर द कार्स इन माई सोसाइटी 4 लाख, 5 लाख। तो मैंने क्या किया, गाड़ी का नाम, गाड़ी का ओनर, उसका कॉस्ट लिखना चालू कर दिया, फिर मैंने एवरेज ले लिया, तो मुझे पता चला व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ अ कार इन माय सोसाइटी। तो इसमें द कार्स इन माय सोसाइटी बिकम माय पॉपुलेशन। तो आई कंप्लीटली अग्री विथ यू कि पहले पॉपुलेशन मतलब पीपल होता था, अब पॉपुलेशन मतलब पीपल नहीं, एनीथिंग दैट यू आर स्टडिंग या एनीथिंग अंडर स्टडी बिकम्स योर पॉपुलेशन। सो व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स इज अ स्टडी। What do you study? A population. Population मतलब people? अरे नहीं, आप एक कंपनी का हिंदुस्तान लीवर ले लो, हिंदुस्तान लीवर का 2010 से लेके 2019 तक का टर्नओवर स्टडी कर रहा हूं मैं, तो हिंदुस्तान लीवर का टर्नओवर बिकम्स योर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इज एनीथिंग दैट इज अंडर स्टडी, इट कुड बी अ लिविंग और अ नॉन लिविंग थिंग। सो स्टैटिस्टिक्स इज अ स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। क्या स्टडी करते हो? पॉपुलेशन। ठीक है, तो अब मेरे सोसाइटी में लोग हैं ना, मैं उनकी हाइट स्टडी कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया, जब गया, दरवाजा खटखटाया, आंटी अंकल ने दरवाजा खोला, अंकल घर में कितने लोग हैं, नाम लिखा, उनका जरा आप हाइट बता दो, हाइट्स लिख लिया, ऐसा करके पूरे सोसाइटी का हाइट्स लिख लिया और एक एवरेज ले लिया। मैं पता करना चाहता था मेरी सोसाइटी यंग है या ओल्ड है। इसका मतलब क्या होता है, अपन बोलते हैं ना वो पुणे, वो बैंगलोर इज अ यंग सिटी, पुणे ना इंटीरियर्स इज अ यंग सिटी। उसका मतलब क्या है, मतलब एवरेज पॉपुलेशन रहने वाले लोग यंग है, तो यार कोई बुढ़ा दिखता नहीं है क्या वहां पे? वैसा नहीं है, देयर विल बी ओल्ड पीपल, पर कंपैरिजन में यंग लोग बहुत होंगे। सो व्हाट आर यू ट्राइंग टू स्टडी हियर? यू आर ट्राइंग टू स्टडी द एज ऑफ द पीपल लिविंग इन योर सोसाइटी। इज दैट राइट? ठीक है, अब है ना मेरे को मेरी सोसाइटी के गाड़ी का माइलेज स्टडी करना। सो माइलेज बिकम्स the cars become the population and you are trying to study mileage. Everybody understands this? Now I am trying to study the mileage of the people in my society. मेरे सोसाइटी के लोगों का माइलेज क्या है? तो मैं दरवाजा खटखटाऊंगा, अंकल बाहर आएंगे, मैं बोलूंगा अंकल 2 लीटर पानी पियोगे तो क्या माइलेज दोगे आप? कितना भाग सकते हो? या 2 किलो चावल खाओगे तो क्या माइलेज दोगे? चलेगा क्या? मार खाओगे वो अलग, सोसाइटी से निकाल देंगे वो अलग। When you study a population, you have to study the population for something that the population has. लोगों का माइलेज नहीं स्टडी करो ना, लोगों को माइलेज नहीं होता। पेड़ों को स्टडी करो ना, पेड़ों को स्टडी करो माइलेज के लिए, कर सकते हैं क्या? अरे पेड़ों को माइलेज के लिए स्टडी नहीं कर सकते। गाड़ियों को ओरिजिन के लिए स्टडी करो, ओरिजिन मतलब ये गाड़ी कहां से आई है, वो कर सकता हूं। Cars have origin. It is an Indian make, it is a German make, it is a European make or it is an American make. गाड़ियों को make होता है, गाड़ियों को origin होता है। लोगों को origin होता है? हाँ होता है। इंडियन है, नॉन इंडियन है। इंडियन है, अगर बॉम्बे में रह रहा है तो आर यू फ्रॉम राजस्थान, सो यू बिकम अ राजस्थानी। इफ यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, यू बिकम अ महाराष्ट्रियन। इफ यू फ्रॉम गुजरात, यू बिकम अ गुजराती। इफ यू आर फ्रॉम दिल्ली, यू बिकम अ दिल्लीite। इफ यू आर फ्रॉम द नॉर्थ, अपने महाराष्ट्र के नीचे कुछ भी हो तो यू आर अ साउथ इंडियन। फिर हम लोग को पता नहीं चलता, सब तमिलियंस, पीपल फ्रॉम आंध्रा, पीपल फ्रॉम केरला आर ऑल द सेम। गलत है वो, देयर आर ऑल्सो बाइफिकेशंस देयर। सो कैन आई स्टडी पीपल फॉर देयर ओरिजिन? यस, आई कैन स्टडी पीपल फॉर देयर ओरिजिन। कैन आई स्टडी पीपल फॉर देयर सैलरीज? हाँ। कैन आई स्टडी पीपल फॉर देयर माइलेज? गलत है, लोगों को माइलेज नहीं होता, लोगों को माइलेज के लिए स्टडी नहीं कर सकते। तो जब कभी आप एक स्टैटिस्टिकल स्टडी करते हो किसी पॉपुलेशन की, तो द स्टडी ऑफ दैट पॉपुलेशन हैज टू बी फॉर इट्स ओन
कैरेक्टरिस्टिक, मतलब माइलेज आदमी के कैरेक्टर में नहीं है, एज आदमी के कैरेक्टर का है, वेट आदमी के कैरेक्टर का है, हाइट आदमी के कैरेक्टर का है, सैलरी आदमी के कैरेक्टर का है, एक्सपीरियंस आदमी के कैरेक्टर का है, रिलीजन आदमी के कैरेक्टर का है, कास्ट आदमी के कैरेक्टर का है. ऑल दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. Mileage is not a characteristic of a human being. Mileage is a characteristic of a vehicle. Mileage is not a characteristic of a person. Tree का characteristic है height. What origin? India की ये tree or it is a foreign origin? क्योंकि बहुत सारी पेड़ ऐसे होते हैं that are not of Indian origin. They originate from some other country. So trees can have an origin. Trees can have a height. Trees can have what forest do they belong to? स्कूल में क्या था ये? रेन फॉरेस्ट, फिर डेसिडियस फॉरेस्ट, फिर डेजर्ट रीजन वगैरह वगैरह. तो कहां से आता है ये पेड़? You study a population for its own characteristic. It needs to be a part of its characteristic. When you do a statistical study of a population for a characteristic, you will get data. Example, अगर आप स्टडी कर रहे हो अपनी सोसाइटी के लोगों का एज, तो आपको डेटा मिलेगा, बंदे का नाम, उसके बाजू में एज. अगर आप एक स्टैटिस्टिकल स्टडी कर रहे हो आपके सोसाइटी के गाड़ियों की फॉर इट्स माइलेज, तो आपको डेटा मिलेगा माइलेज. 26 किलोमीटर पर लीटर, 30 किलोमीटर पर लीटर, 10 किलोमीटर पर लीटर. अगर आप आपके कॉलोनी के पेड़ स्टडी करते हो, सो यू डू अ स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ द ट्रीज ऑफ योर सोसाइटी फॉर द फॉरेस्ट दैट दे बिलोंग टू, तो आपको डेटा मिलेगा. आप पेड़ को नंबर दे दोगे, नंबर लिख दोगे पेड़ के ऊपर, ट्री नंबर 1 बिलोंग्स टू दिस फॉरेस्ट, ट्री नंबर 2 बिलोंग्स टू दिस फॉरेस्ट. So when you do a study of a particular population for a particular characteristic, you get data. अब ये जो डेटा मिलता है आपको, this data that you get after studying a certain population for a particular characteristic, ये डेटा ना अलग अलग टाइप का हो सकता है. मतलब there are two main types of data, or there are two broad classifications of data. One is quantitative data and one is qualitative data. डेटा जिसको क्वांटिटी होती है वो क्वांटिटेटिव डेटा हो जाता है, और डेटा जिसको क्वालिटी होती है वो क्वालिटेटिव डेटा हो जाता है. क्वांटिटेटिव डेटा को वेरिएट भी बोला जाता है एंड क्वालिटेटिव डेटा को एट्रीब्यूट भी बोला जाता है. अगर 11th 12th मैथ्स किया होगा तो पेपर 2 में फर्स्ट चैप्टर था थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स. कैसे क्वेश्चंस थे पता है उसमें? 500 women live in a hostel, 250 are married, 50 are Indians, 40 are foreign, 50 are from Mumbai, rest are not from Mumbai. Can you tell me how many people are from Mumbai who are not married, या from Mumbai who are married? ऐसा सब होता था उसमें. That is where attribute comes in. तो जब आप डेटा की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करते हो, या आप जब आप पॉपुलेशन की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करते हो जो आपको ऐसा डेटा देता है जो एक क्वांटिटी है. एग्जांपल माइलेज. माइलेज क्वांटिटी है, गाड़ी का माइलेज क्वांटिटी है ना, 26 किलोमीटर पर लीटर, 25 किलोमीटर पर लीटर. हाइट, हाइट भी क्वांटिटी है ना, 60 लेट्स से 160 सेंटीमीटर है, इंचेस में गिनोगे या फिर तो 60 इंचेस है, या फिर अगर फीट में गिनते हो तो ये 5.5 फुट का बंदा है, 5 फुट का बंदा है, 4 फुट का बंदा है, 4.5 है, 4.6 फीट का बंदा है, सो ऑन. तो ये सब जहां पे आपको क्वांटिटी मिलती है. बारिश स्टडी करते हो, रेन स्टडीड विद द हेल्प ऑफ अ इक्विपमेंट दैट टेल्स यू कितने सेंटीमीटर बारिश हुई है. तो कुछ नहीं होता है, एक बेसिक जार होता है, वो जार को बाहर बारिश में रख देते हैं थोड़े टाइम के लिए, उतने टाइम में वो जार कितना भरता है
उससे डिसाइड होता है कि कितने सेंटीमीटर बारिश हुई है। तो बारिश सेंटीमीटर में गिनी जाती है। सो 100 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर बारिश हुई है, 30 सेंटीमीटर बारिश हुई है, एंड सो ऑन। दिस इज अगेन अ क्वांटिटी, एंड वेरेवर यू गेट क्वांटिटेटिव डेटा वी कॉल इट अ वेरिएट। तो दूसरा क्या डेटा हुआ? दूसरा डेटा हुआ क्वालिटेटिव डेटा। अब क्वालिटेटिव डेटा मतलब, या तो मैंने गाड़ी के मेक के बारे में बात की थी या ओरिजिन के बारे में बात की थी। मेक मतलब कौन सी कंपनी का बना हुआ है, तो उसमें हो सकता है कि अरे टाटा मोटर्स है, या फिर लेट्स से इट कम्स अंडर द मर्सिडीज बैनर, और लेट्स से फोर्ड का गाड़ी है, और एनी मेक ऑफ द कार, व्हाट कंपनी डज द कार बिलोंग टू। अब आप तो ये नहीं बोलेगा ये कंपनी 6 है और वो कंपनी 5 है, ऐसे नहीं होता। कंपनी का नाम है ना, तो उसको नाम दो, वो क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं है। इज दैट राइट? इफ आई आस्क यू कि इन अ क्लास आपको उठाया और बोला बता कितने मार्क्स मिले, तो आप क्या बोलोगे कि मुझे 90 मिला है आउट ऑफ 100 या 60 मिला है आउट ऑफ 100, क्वांटिटी है। और अगर मैंने खड़ा कर दिया और मैंने बोला पास है या फेल है वो बता, तो आप क्या बोलोगे? मैं 30 हूं। अरे पास या फेल बोला है, पास या फेल में क्या होता है? पास हूं या फेल हूं। फिर 90 वाला भी पास है, 35 वाला भी पास है, दैट इज क्वालिटी। तो आप खड़े होकर ये नहीं बोलोगे कि मैं 1 पास हूं या 2 पास हूं, या मैं अच्छा पास हूं या मैं बुरा पास हूं, या मैं अच्छा फेल हूं या मैं बुरा फेल हूं। ऐसा कुछ नहीं होता। पास पास है, फेल फेल है, वो क्वालिटी है, उसमें ग्रेडिंग नहीं होता, उसमें अच्छा बुरा नहीं होता। पास फेल दो ही टाइप है। बल्ब टेस्टिंग कर रहे हो आप, फिलिप्स में काम करते हो, आप फाइनल बना हुआ प्रोडक्ट टेस्ट करते हो, तो आप बैठे हो टेस्टिंग के लिए, बल्ब उठाया, सॉकेट में लगाया, जला तो अच्छा है, नहीं जला तो डिफेक्टिव है। तो दो ही ऑप्शन है, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव। अच्छा डिफेक्टिव और बुरा डिफेक्टिव, या अच्छा नॉन डिफेक्टिव और बुरा नॉन डिफेक्टिव, ऐसा कुछ नहीं होता, क्वालिटी है। So whenever data exhibits quantity, it becomes quantitative data, and wherever data exhibits quality, it becomes qualitative data. Let's focus on quality. आप में मतलब whenever we study quality ना, we will only be studying 2 parts in quality, A या B. There is no gray area, black या white. तो जब हम स्टडी करेंगे ना, तो बल्ब स्टडी कर रहे हैं, बल्ब डिफेक्टिव है या नहीं है ये बताओ, तो दो ही ऑप्शन है, डिफेक्टिव है या नहीं है। कॉइन उड़ाते हो, हेड्स या टेल्स है ये बताओ, हेड्स है टेल्स है। एक्सीडेंट हो रहा है, एक्सीडेंट हुआ या नहीं हुआ, गाड़ियां कितनी, लोग कितने क्रॉस किए, 100 लोग, कितने एक्सीडेंट हुए वो बताओ। तो एक्सीडेंट, अगर बंदा चल रहा है तो आप बोलोगे एक्सीडेंट हुआ या नहीं हुआ, यस और नो, पास हो या फेल हो। देयर इज नो ग्रे एरिया हियर, देयर इज अ ब्लैक एंड अ व्हाइट. So whenever we study quality, we are going to study only 2 qualities, black and white, bas, no gray area. Quantity on the other hand can be further bifurcated. अब quantity मतलब नंबर होता है, नंबर को कैसे bifurcate करते हो बताता हूं. आप हाइट स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो अब हाइट स्टडी कर रहे हो तो इज इट ओके अगर कोई आपको बोलेगा कि मेरी हाइट 6.5 फीट है, so it's 6.5, or somebody else will come in and say my height is 4.56 feet, चलेगा, no problem, आप एग्जैक्ट गिन रहे हो, which is very good. कोई आके बोलेगा कि my weight is 62.56 kg, चलेगा, हाँ चलेगा. कोई आके बोलेगा कि my weight is 52.3586 kg, चलेगा, हो सकता है ना. अगर आपका वेट स्केल इज अ स्केल जो एकदम आगे तक कैलिब्रेशन देता है 4 डेसिमल तक, तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर अगर आप कल जूता खरीदने चले गए और दुकानदार ने पूछा क्या साइज में जूता दिखाऊं, तो आप बोलोगे मेरे को ना एक 9.5 में दिखाओ और एक 9.75 में दिखाओ. तो वो क्या करेगा पता है, वो तो पहले सबसे बड़ा साइज जूता निकालेगा और मार मार के दुकान से निकाल देगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता, या तो 9 दिखाता हूं या 10 दिखाता हूं, देयर इज नो इन बिटवीन. अगर मैंने आपको पूछा आपकी कॉलोनी में ना बहुत आपकी कॉलोनी का जो बाहर का रास्ता है वो पहले नॉर्मल रोड था, नॉर्मल मतलब ऐसा ही बेसिक रोड था, अब कैसा अब डेवलपमेंट बढ़ गया तो वो मेन रोड टाइप्स हो गया, तो बहुत गाड़ियां आ रही है वहां से और बहुत रैश ड्राइविंग होता है, तो आप चाहते हो वहां पे स्पीड ब्रेकर लगे या सिग्नल लगे, तो आपने आपके नगर सेवक को बोल दिया कि भाई जरा देखो बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, व्हाई डोंट यू पुट अ स्पीड ब्रेकर हियर और अ सिग्नल हियर. सो द गाय सेड ऐसा सब लोग आके दे देंगे और बोलेंगे स्पीड ब्रेकर लगा दो कि हर एक कॉलोनी के बाहर स्पीड ब्रेकर ही लगेगा, तो लोग गाड़ियां कहां चलाएं, सिर्फ स्पीड ब्रेकर पे ही गाड़ियां चलानी पड़ेंगी.
तो वो बोलेगा मेरे को कुछ ठोस सबूत दो, डेटा दो कि बाबा एक्सीडेंट होते हैं। तो बोलेगा ठीक है, मैं ना 1 महीना बैठूंगा और रोज नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स लिख लूंगा, एक बार मेरे को भी पता चले कि कितने एक्सीडेंट होते हैं तो फिर मैं बताऊंगा कि इतने एक्सीडेंट होते हैं, तो फिर लगा के दो बाबा स्पीड ब्रेकर। नहीं तो आप बोलोगे 30 दिन बैठा था, 30 दिन में 2 एक्सीडेंट हुए, 2 एक्सीडेंट के लिए मैं स्पीड ब्रेकर नहीं लगा सकता। पीपल नीड टू बी मोर केयरफुल। फॉर 2 एक्सीडेंट्स इन 30 days आई कैन नॉट पुट अप अ स्पीड ब्रेकर। सो व्हेन आई से दैट, आई सिट डाउन, डे 1 मैंने लिखना चालू कर दिया कितने एक्सीडेंट होते हैं। तो पहले दिन में 7 एक्सीडेंट सीधा, डे 2 2 एक्सीडेंट, डे 3 कोई एक्सीडेंट नहीं, डे 4 कोई एक्सीडेंट नहीं, डे 5 3.5 एक्सीडेंट। 3.5 एक्सीडेंट, हाँ, तो क्या हुआ, 3 एक्सीडेंट हुए। चौथा ना होते होते रह गया, मतलब क्या हुआ, वो गाड़ी आई और उसके एकदम बाजू में रुक गई, तो वो आधा एक्सीडेंट पकड़ा मैंने। ऐसा नहीं होता है। एक्सीडेंट एक ऐसी चीज होती है, या तो हुआ या नहीं हुआ। 3.5 एक्सीडेंट नहीं होता, मरते मरते बचा काउंट नहीं होता है, या तो मरा या नहीं मरा, मरते मरते बचना इज नॉट काउंटेड। एंड दैट इज व्हाई व्हेन यू टॉक अबाउट नंबर्स, देयर कुड बी 2 टाइप्स ऑफ डेटा सेट। ऐसा डेटा सेट जो आपको डेसिमल वैल्यू देता है, और ऐसा डेटा सेट जो आपको डेसिमल वैल्यू नहीं देता। अगर आपको डेटा सेट डेसिमल वैल्यू नहीं देता तो वी कॉल इट अ डिस्क्रीट वेरिएट। डिस्क्रीट मतलब ओनली होल नंबर वैल्यूज, सिर्फ होल नंबर वैल्यूज है इसमें। और फिर दूसरा क्या है, दूसरा है एक डिस्क्रीट है और दूसरा है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में क्या है, डेसिमल एंड होल। हाइट डेसिमल में भी हो सकता है, वेट डेसिमल में हो सकता है, माइलेज डेसिमल में हो सकता है, शू साइज नहीं होता डेसिमल में। कोई आगे नहीं बोल सकता 9.5 में जूता देखा, आपने कुछ गलत लिखा होगा। 9 होता है, 10 होता है या 11 होता है। शर्ट साइज कोई नहीं बोलता कि मेरा शर्ट साइज 40.36 है, नहीं होता है। या तो 40 में शर्ट दिखता है या 42 में। कोई अच्छे ब्रांड्स होते हैं जो 41 में भी बनाते हैं, पर अपना तो 40 फिर 42 होता है या फिर 44 होता है। नोबडी इज गोइंग टू मेक अ शर्ट। हाँ, टेलर के पास जाते हो तो टेलर मेड शर्ट बनता है। अगर आप रेडीमेड में बात करो तो किसी को जाके बोल नहीं सकते कि मेरे को 42.5 में शर्ट दिखाओ, नहीं होता है। तो अगर आप शर्ट साइज लिख रहे हो लोगों की, तो इट इज गोइंग टू बी अ डिस्क्रीट वेरिएट एंड नॉट अ कंटिन्यूअस वेरिएट। एग्जाम टेस्ट है, एमसीक्यू पैटर्न है, नेगेटिव मार्किंग वगैरह कुछ नहीं है। 50 क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, राइट आया तो मार्क्स, रॉन्ग आया तो नहीं मार्क्स। तो किसी को 45.5 मार्क्स मिल सकते हैं क्या? नहीं मिल सकते। आधा मार्क कौन देता है? मिला तो पूरा, नहीं तो कुछ नहीं, सीधा। तो आधा मार्क नहीं मिलने वाला। हाँ, एमसीक्यू है, बट अभी यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह है और टीचर बोली कि नहीं, अगर बच्चे ने आंसर लिखा है, स्पेलिंग गलत है तो दे दो आधा मार्क, तो बात अलग है। तो अगर स्पेलिंग लिखा है पर स्पेलिंग मिस्टेक है तो आधा मार्क दे रहा हूं, तो बात अलग है। तो कंटिन्यूअस डेटा सेट में आ जाएगा। कभी गलती से 11th-12th मैथ्स किया होगा तो अभी ऐसा सुनते हुए क्वेश्चन में, x is a discrete random variate, x is a continuous random variate। मतलब क्या बताया? मेरा जो डेटा सेट है उसको रिप्रेजेंट करने वाला जो वैल्यू x है ना, वो एक होल नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू है, या फिर वो एक डेसिमल न्यूमेरिक वैल्यू है। सो x is a continuous discrete continuous variate or x is a random variate. And this, for your understanding, is very important because we are going to keep using this in a lot of places. Not exactly in this way, पर ये basic statistics है, इतना तो पता होना चाहिए. So let me do a quick brush up and then let me continue. When did statistics originate? Statistics originated because of the need of a study. What do you study? You study a population. Why do you study a population? You study a population for a particular characteristic. When you study a population for a characteristic, you get data. This data could be of 2 types. It could be quantitative data, which is numerical based या quantity based, or it could be qualitative data, which is quality based. नंबर नहीं लगा सकते, ये क्वालिटी है। गाड़ी का कलर बोलो तो नंबर नहीं, गाड़ी का कलर 2 है, अरे ऐसे नहीं होता, लाल है काला है वो होता, 2 क्या होता है? There's nothing like 2. There's no number. आप where are you from?
I'm from Gujarat, sir, so I'm Gujarati. Where are you from? Sir, I'm from Delhi, so I'm a Delhiite. Where are you from? I'm from 10. अरे 10 क्या है? What do you mean by 10? I'm from 10.5 sir. अरे नहीं होता ऐसा. ये क्वालिटी है, क्वालिटेटिव डेटा है, इसमें नंबर नहीं हो सकता. मोबाइल नंबर बताओ. मेरा मोबाइल नंबर राजस्थान है. अरे न्यूमेरिकल डेटा है, नंबर होना चाहिए. And that is the basic bifurcation between any data set. आपको दिया हुआ डेटा could be a quantitative data or a qualitative data. क्वालिटिव डेटा क्वालिटी बताती है. अब क्वालिटी कुड बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, बट जब हम क्वालिटी स्टडी करेंगे, हम क्वालिटी का दो ही पार्ट स्टडी करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, हेड या टेल, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, अपने लिए और बाकी कुछ होता नहीं है. मेट विद एन एक्सीडेंट, डिड नॉट मीट विद एन एक्सीडेंट, पास पास फेल, इंडियन नॉन इंडियन, महाराष्ट्रियन नॉन महाराष्ट्रियन, दैट्स इट. एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड, मैरिड अनमैरिड, एडुकेटेड अनएडुकेटेड, बस. देयर इज नो फर्दर बाइफिकेशन देयर. अपने लिए is qualitative data. Quantitative data is numerical data, पर वो नंबर भी दो टाइप के हो सकते हैं. दो टाइप के नंबर्स कैसे होते हैं? दो टाइप के नंबर्स ऐसे होते हैं. एक टाइप का नंबर होता है जहां पे डेसिमल वैल्यूज अलाउड नहीं होती है. नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, मैंने तो कॉइन उड़ाया 10 बार, जरा कितनी बार हेड आया वो बताओ? 5.5 बार हेड आया. अरे 5.5 बार हेड कैसे आता है? 5 बार आया होगा या 6 बार आया होगा? नहीं सर, बीच में कॉइन ऐसा सीधा खड़ा था तो मैंने 5.5. सीधा खड़ा हुआ कॉइन कंसिडर नहीं करते हैं, वो इज डिसमिस्ड, वापस कॉइन उड़ाया जाता है. सो व्हेनेवर यू स्टडी अ डेटा सेट विच इज अ न्यूमेरिकल डेटा सेट, बट वहां पे सिर्फ और सिर्फ होल नंबर वैल्यूज अलाउड हैं, देन इट बिकम्स अ डिस्क्रीट डेटा वैल्यू. वेल, जहां पे डेसिमल्स अलाउड हैं, वजन, वेट, वॉल्यूम, हाइट, सैलरी, पगार हो सकती है ना. माई सैलरी इज 5,67,846 रुपीज एंड 50 पैसे. डेसिमल में चल सकती है सैलरी. देन इट बिकम्स अ कंटिन्यूअस डेटा सेट. कॉस्ट ऑफ समथिंग कैन बी अ कंटिन्यूअस वैल्यू, डज नॉट नेसेसरीली नीड टू बी अ डिस्क्रीट वैल्यू, एंड दैट इज वेयर डिस्क्रीट डेटा सेट्स कम इनटू पिक्चर. So what I want you to do is, on a fresh page, I want you to write this down. This does not fall under any chapter. हाँ, before you do that, उसके पहले please एक काम करना, मैं अभी बता देता हूँ, and then only continue. Fine, let me show it to you here only. Before you continue, what I want you to do is, this is your notebook. What I want you to do is, in this notebook, the first double page I wanted blank. इसमें क्या करने वाले हैं ये मैं बाद में बताऊंगा, और ये पहला डबल पेज ब्लैंक होगा. ये पहले पेज पे आपको नाम वाम कुछ जो भी लिखना है वो लिख लो. पहला पेज पे नाम वाम लिखना है वो लिख लो, छोड़ के नेक्स्ट पेज पे डबल पेज ब्लैंक चाहिए मेरे को. एक पूरा डबल पेज ब्लैंक. उसका क्या करना है मैं बताता हूं, और ये पूरा डबल पेज ब्लैंक छोड़ दोगे, और फिर ये जो मैंने बोला है ये इसके पीछे लिखना चालू कर दोगे. दिस डजंट कम अंडर एनी चैप्टर, दिस इज बेसिक स्टैटिस्टिक्स. ये बेसिक स्टैटिस्टिक्स में आता है, किसी चैप्टर के अंडर नहीं आता. तो यू डोंट हैव टू राइट इट अंडर एनी पर्टिकुलर चैप्टर. दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू राइट. सो लेट मी होल्ड इट फॉर लाइक अ फ्यू सेकेंड्स. Yes, you can pause the video here and write it down. What is statistics? Statistics is a study. What do you study? You study a population. You study a population for its own characteristic. When you study a population for its characteristic, you get data. Data could be of two types, qualitative and quantitative. When you talk about quantitative, it is numerical. Numbers can be of two types, discrete and continuous. मतलब सिर्फ whole number या decimal भी चलेगा. Quality can be of different type, but when we study, we can still study quality only in two. अगर इसका एग्जाम्पल देना पड़े तो लिखना मत एग्जाम्पल, क्योंकि फिर एक ही टाइप हो जाएगा. अगर एग्जाम्पल देना पड़े तो आई एम गोइंग टू स्टडी माई सोसाइटी पीपल फॉर देयर सैलरी. सैलरी का जो डेटा आता है इज गोइंग टू बी अ वेरिएट, और आई कैन से आई एम स्टडीइंग माई सोसाइटी फॉर देयर वेट. वेट का जो डेटा है इज न्यूमेरिकल, एंड दैट न्यूमेरिकल डेटा इज अ कंटिन्यूअस वैल्यू. डेसिमल में वेट हो सकते हैं. या फिर आई एम गोइंग टू स्टडी द पीपल इन माई सोसाइटी फॉर देयर ओरिजिन. ओरिजिन मतलब इंडियन या नॉन इंडियन है. आर दे इंडियन और ऑफ फॉरेन ओरिजिन? इफ दैट इज द केस, देन माई डेटा इज अ क्वालिटेटिव डेटा.
तो मैं डेटा को क्वालिटी बेस्ड लिखूंगा, क्वांटिटी बेस्ड नहीं लिखूंगा. I hope you've understood this. Pause the video, make this table and write this down. And why do we need to study this? Because what we are going to do in this paper of operations management is operations को manage करना है. Now when we talk about operations, these could be different kinds of operations, and to manage these operations, what I'm going to do is I'm going to study past data, and then depending on the past data, I'm going to take decisions into these ऑपरेशंस. तो भले अगर मुझे पूछा जाए कि कंपनी का ग्रोथ क्या होने वाला है बताओ, या फिर मुझे पूछा जाए कि कंपनी के एक्सपेंसेस क्या होंगे इन द नेक्स्ट गिवन 5 years, कंपनी का मैन पावर क्या होगा गिवन इन द नेक्स्ट 5 years, तो ये सब क्या है, मुझे बोल रहे हैं कि आप फ्यूचर एस्टिमेट करो डिपेंडिंग ऑन द डेटा गिवन टू यू. सो डिपेंडिंग ऑन माई प्रीवियस डेटा, दे आर आस्किंग मी टू एस्टिमेट द future, and that is why knowing statistics is very important. And the world right now is nothing else but analytics. Like somebody rightly said that every individual is nothing else but 50,000 data points. Every individual is nothing else but data, जिसकी जो डेटा इवैल्यूएट करके हम अलग अलग चीजें कर सकते हैं. जैसे कि आपका एज क्या है, आप रहते कहाँ हो, आप किधर कब कहाँ तक पढ़े हो, आप क्या पढ़ रहे हो, ये इंटरेस्ट समझ के आपको क्या एड्स आनी चाहिए, आप क्या एड्स में इंटरेस्टेड हो, ये सब डिसाइड होता है. तो टुडेज वर्ल्ड इज नथिंग एल्स बट डेटा एनालिटिक्स. इवन नाउ once you become a CMA and if you do an analytics course, you are nothing else but a data analyst, or you are nothing else but a financial analyst, where you are analyzing data and giving results about profits and losses and what to do and what not to do in a financial situation. कि ये शेयर है, अब तक ऐसे एक्ट हुआ है, तो इसके आगे कैसे एक्ट होगा, what are you going to do, how are you going to invest into it, and all of that. So because of all this, you understanding statistics becomes very important, because like I said, what we are going to do in this paper is we are going to study different kinds of data sets to make different analysis, and that is where statistics comes from. Fine, then to sum up this session, we started off with understanding what is the difference between mathematics and statistics. So mathematics is exact science, while statistics is approximate science. Anything that you study under mathematics is because the result that is derived out of it is an exact result. But then we started studying populations, और फिर उसमें से जो result आते थे वो exact नहीं थे, वो approximate थे. And that is why we defined approximate sciences. The different technologies that we use these days work on two models. One could be a mathematical model and one could be a statistical model. Any apps that you use for a lot of things are mathematical apps and statistics. जैसे कि शेयर मार्केट का जो ऐप है, अगर आप इन्वेस्ट करते हो शेयर मार्केट में या घर में कोई करता होगा, तो उनका एक एनालिसिस का मैप होगा और एक ऐप होगा, सॉरी, तो वो खोलते हो ना तो वो आपको ग्राफ दिखाता है और बोलता है कि देख पिछले 5 महीनों में, 5 दिनों में, 5 हफ्ते में, this was the graph of your share that you've invested. Now in the next couple of weeks, this is what is going to happen. But that is an approximate value. मतलब वो बोलेगा कि शेयर 100 रुपए से बढ़ना चाहिए था, पर आपका शेयर सिर्फ 50 रुपए से बढ़ा, तो आप जाके उसको गोली नहीं मारोगे. वो बोलेगा क्या तूने बोला था कि 100 रुपए से बढ़ेगा और इतना लगा. बट एट द सेम टाइम, अगर आज शेयर की वैल्यू 200 रुपया है और अगर मैंने 200 रुपया पर यूनिट के हिसाब से 10 यूनिट खरीदे, तो 2000 रुपया लगना चाहिए, उसमें ऊपर नीचे नहीं हो सकता. आप फिर ले दे के बाद में बोलोगे अरे वो अप्रोक्सीमेट होता है 2000 रुपया, लगता 4000 रुपया, ऐसा नहीं होता, वो एग्जैक्ट वैल्यू है. सो व्हेनेवर एनी रिजल्ट कम्स अंडर an exact result, it is a mathematical result, and any result that comes under a approximate result is a statistical result. So we are going to deal with a lot of approximate sciences in the next section that we are going to do, and that is why we are going to deal with a lot of statistics, and hence the need to understand what statistics is and where does it come from, which is where we came here and we said statistics is a study. What do you study? You study a population. You study a population for a particular characteristic and you get data. This data could be quantitative or qualitative. If it is quantitative, then it is numerical data, which could be of a discrete number type or a whole number type, which is a discrete number or a whole number. And if it is continuous, then it is a decimal value is also
allowed. It could be a quality based data, then we call it an attribute. What I want you to do is I want you to run through this once at least. I want you to be in the back of your head, because this is basic statistics. You need to have this in your knowledge base. With this, I will end this part of the session and we continue to the next.